નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ડિજિટલ ક્લાસીસ પર। આજના વિડીયોમાં વાત કરીશું તમારી બોર્ડ પરીક્ષા માર્ચ 2024 ધોરણ 10ના હિન્દી વિષયના આજે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવા હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ રિવિઝન, વન શોટ રિવિઝન આજના વિડીયોમાં આપણે કરવાના છીએ। અને વ્યાકરણ માટે હજુ આપણે બીજો વિડીયો આપણી ચેનલ પર આવશે, તેને પણ તમારે જરૂરથી જોવાનો છે। જેટલા પણ પ્રશ્નો અહીં દેખાડ્યા છે બધા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે, બધાના જવાબ તમારે જે છે જાતે લખવાના રહેશે। અહીં આપણે જવાબ દર્શાવીશું, પરંતુ તે જવાબ પહેલાં તમારો જવાબ કોમેન્ટ બોક્સમાં આવવો જોઈએ, અથવા તો તમારે તમારી નોંધપોથીમાં જવાબ તમારે આપણા જવાબ પહેલાં જાતે તમારે લખવાના રહેશે। અને તમારો હિન્દી પેપર માટે એટલે કે હિન્દી વિષયમાં તમે કેટલા ગુણ તમારો મેળવવા માટે ટાર્ગેટ છે તે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। હજુ સુધી સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર ફોલો ન કરી હોય, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં બધાની લિંક મળી જશે। વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, ઇન્સ્ટાગ્રામ બધાની લિંક છે, ત્યાંથી જાઓ અને અત્યારે જ આપણી ચેનલને બીજી સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સ પર જોઈન કરો। તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત। તો સૌપ્રથમ વિભાગ એ ગદ્ય વિભાગ, તમારા વિભાગ એ માટે આપણે સૌપ્રથમ મોસ્ટ એમપી હેતુલક્ષી પ્રશ્નો જોવાના છે। તેમાં સૌપ્રથમ વિકલ્પ પૂર્તિ કીજીએ। અહીં આપણે જેટલા પણ દર્શાવીએ છીએ તે તમારે હેતુલક્ષીમાં જે તમારે બદલાવ થયા છે આ વખતે, જેમાં તમારે 30% હેતુલક્ષી પ્રશ્નો છે, તેના મુજબ અહીં આપણે જે છે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરેલો છે, તેથી તે વાતને તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવી। અહીં જેમાં તમારે પ્રશ્નક્રમ 1, 2 અને 3 રહેશે, જેના ગુણ તમારે 3 છે। જોઈએ આપણે સૌપ્રથમ તમારું ગદ્ય 2 એટલે કે બીજા ચેપ્ટરમાંથી આપણે જે છે પહેલાં એમપી પ્રશ્નો જોઈ લઈએ। હેતુલક્ષી પ્રશ્ન વિકલ્પની ચર્ચા કરીશું। તેમાં पहला प्रश्न, लाडली बूढ़ी काकी को पूड़िया देना चाहती थी परंतु उसे किसका डर सता रहा था? तो केनो डर हतो? तो कि અહીં જે છે તમારો જવાબ શું આવશે? તો કે અહીં તમારો જવાબ આવશે એ એટલે કે माँ का डर सता रहा था। બીજો પ્રશ્ન, बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो અહીં તમારો જવાબ આવશે બીજો પ્રશ્ન, જવાબ તમારો આવશે રૂપા એટલે કે બી। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है? અહીં તમારો જવાબ આવશે વિદ્વેષ એટલે કે સી। ત્યાર પછી बूढ़ी काकी में कौन सी चेष्टा शेष बची थी? तो कौन सी चेष्टा? जवाब તમારે આવશે અહીં ચોથો પ્રશ્ન, જવાब આવશે स्वादगी એટલે કે સી। पांचवा प्रश्न, किसने अपने हिस्से की पूड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? तो અહીં જે છે જવાબ તમારો આવશે લાડલી એટલે કે સી। छठवां प्रश्न, पश्चाताप करती हुई काकी को दुख था। पश्चाताप करती हुई दादी को, અહીં જે છે પશ્ચાતાપ કરતી हुई काकी को दुख था, અહીં વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે। અહીં તમારે વિકલ્પમાં જ વાક્ય પૂર્ણ કરવાનો તેવો પ્રશ્ન પૂછેલ છે, તો અહીં જે છે તમારો જવાબ શું આવશે? तो कि अपनी जल्दबाजी पर उन्हें दुख था। त्यार पछी सातवां प्रश्न, बुद्धिराम की लाडली काकी के लिए, बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी? અહીં તમારો જવાબ આવશે સુરક્ષા का એટલે કે બી। ત્યાર પછી ચોથું પ્રકરણ એટલે કે ગદ્ય નંબર 4 ચોથો ભાગ। પહેલો પ્રશ્ન, सच्चा देशभक्त कौन है? तो અહીં જે છે તમારા જવાબમાં આવશે जो अपना कर्तव्य ठीक से कर सकता है, એટલે કે અહીં જે છે તમારો જવાબ આવશે ડી, जो अपना कर्तव्य ठीक से कर सकता है वही सच्चा देशभक्त है। બીજો પ્રશ્ન, वृद्ध स्त्री के अनुसार, तो અહીં જવાબમાં આવશે भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। ત્રીજો પ્રશ્ન, ईसाई पादरी के अनुसार, तो અહીં તમારો જવાબ આવશે हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। આ પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે તમારા માટે। ચોથો પ્રશ્ન, વૃદ્ધ સરકારી કર્મચારી के अनुसार, तो અહીં તમારો જવાબ આવશે हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते એટલે કે બી। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન, વિદેશી મહિલાને देश की अवनति का कारण बताया, तो અહીં તમારે શું આવશે क्या कारण बताया? तो हमारे आलस्य को। ત્યાર પછી ગદ્ય નંબર 6 જોઈએ આપણે। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, उज्जयिनी के राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो किस लिए? जवाब તમારા આવશે ऋतु संहार के लिए। जवाब આવશે ए એટલે કે ऋतु संहार के लिए।
बीजो प्रश्न, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो અહીં જે છે તમારે જવાબ આવશે અહીં દંતુલ કાલિદાસ છે, એટલે કે દંતુલ બોલે છે કાલિદાસને કહે છે. પ્રશ્ન આ તમારે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. આ પ્રશ્ન માર્ચ 2022માં પૂછાઈ ગયેલ છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, અંબિકા रुष्ट थी क्योंकि? तो અહીં તમારે જે છે જવાબ આવશે પુત્રી મલ્લિકા वर्षा में कालिदास के साथ थी, એટલે કે અહીં જે છે તમારો જવાબ આવશે સી, એટલે કે પુત્રી मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी, इसलिए अंबिका रुष्ट थी. चौथो प्रश्न, यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह क्या करता? અહીં જવાब આવશે हरिणों का शिकार न करता. पांचवा प्रश्न, मल्लिका की माँ के अनुसार राज कर्मचारियों के आने पर क्या होता है? तो અહીં જવાબ આવશે अनिष्ट. ત્યાર પછી 8મું ચેપ્ટર 8મું પ્રકરણ. पहलो प्रश्न, इन्फोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन कौन बना था? અહીં તમારે જે છે જવાબ આવશે सुधामूर्ति, એટલે કે સી. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, सुधामूर्ति पाठ की साहित्यिक विद्या बताइए. तो અહીં તમારો જવાબ આવશે રેખાચિત્ર, એટલે કે ડી. ત્યાર પછી सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? અહીં જે છે જવાબ આવશે કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન, એટલે કે એ. ત્યાર પછી सुधामूर्ति ने स्वयं को किसके लिए समर्पित कर दिया? तो અહીં જવાબ આવશે समाज सुधार के लिए, એટલે કે सी. पांचवा प्रश्न, भारत में लोह इस्पात का उद्योग विकसित करने वाले सज्जन है. કોણ હતું તે સજ્જન? અહીં જે છે જવાબ આવશે શ્રી JRD टाटा, श्री JRD टाटा. छठो प्रश्न, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो સ્થળનું નામ છે પૂના, એટલે કે જવાબ આવશે બી. 10મો પાઠ, એટલે કે તમારો ગદ્ય નંબર 10. पहलो तमारो प्रश्न, आंद्री गीत कौन था? तो અહીં જે તમારો જવાબ આવશે ફ્રાન્સીસી લેખક. आंद्री गीत कौन था? तो के फ्रांसीसी लेखक था. बीजो प्रश्न, लेखक सबसे बड़ा काम किसे मानता है? तो અહીં जवाब આવશે તમારે जीवन जीने को. ત્રીજો प्रश्न, लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को कौन सी प्रजा ने ठीक से समझा था? અહીં જવાબ આવશે ચીની, એટલે કે જે ચીની પ્રજા હતી તેમણે જીવનની બધી સમસ્યાઓને ઓળખી હતી. ત્યાં પછી ચોથો પ્રશ્ન, મનુષ્ય जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? અહીં તમારો જવાબ શું આવશે? તો કે જવાબ આવશે जीवन को समझने. તો આવશે जीवन को. અહીં તમારે જે છે એ નહીં, જવાબ આવશે બી, એટલે કે હસી ખુશી में बिताना. पांचवा प्रश्न, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? અહીં जवाब આવશે जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है. ત્યાર પછી ગદ્ય નંબર 12. પહેલો પ્રશ્ન, પ્રોફેસર रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? અહીં જવાબ આવશે માનવ પ્રક્ષેપણ यंत्र बनाना. આ પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. ત્યાર પછી માધવન કોણ थे? બીજો પ્રશ્ન છે માધવન કોણ थे? તો અહીં તમારે જવાબ આવશે વિજ્ઞાની थे. ત્યાર પછી विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो અહીં તમારે જે છે जवाब આવશે यांत्रिक ऊर्जा. मानव प्रक्षेपण यंत्र के संपादन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो અહીં તમારે જે છે જવાબ આવશે અત્યંત જટિલ, એટલે કે એ. ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન, परमाणु में क्या नहीं होता? तो परमाणु में अणु नहीं होता. परमाणु में अणु नहीं होता. 14मो चैप्टर, એટલે કે गद्य नंबर 14. बिस्मिल के लिए अपनी माँ के उपदेश क्या थे? तो देववाणी. क्या थे? देववाणी. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ કે ગુરુ કા નામ क्या था? તો તેમના ગુરુનું નામ હતું, અહીં તમારે જવાબ આવશે શ્રી સોમદેવ. તેના ગુરુનું નામ શું હતું? સોમદેવ, એટલે કે સી.
ત્રીજો પ્રશ્ન, रामचंद्र बिस्मिल के वकालतनामे पर पिताजी ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो અહીં તમે જવાબ આવશે उनकी दृष्टि से वह धर्म विरुद्ध था। उनकी दृष्टि से वह धर्म विरुद्ध था, इसलिए उन्होंने वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं की। ત્યાર પછી આગળ વધીએ આપણે। ચોથો પ્રશ્ન, सेवा समिति का आरंभ कहाँ हुआ? અહીં તમારો જવાબ આવશે शाहजहांपुर में। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी क्या सुनकर प्रसन्न हुई? जवाब આવશે पुत्रों की मृत्यु सुनकर। तो આવશે पुत्रों की मृत्यु सुनकर। ત્યાર પછી गद्य नंबर 16, पहलो प्रश्न, मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में क्या फर्क पड़ा? અહીં તમારે જે છે જવાબ આવશે, અહીં જવાબ આવશે તમારે तेजी आ गई। શું? ओके, तेजी आ गई એટલે કે बी। बीजा प्रश्न, बिंदु को अपने घर में ले जाकर नंदन ने उसे क्या दिया? तो जवाब आवશે मुट्ठी भर मेवा। तीजा प्रश्न, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? અહીં જવાબ આવશે थोड़े से काजू और किशमिशे એટલે કે ए। बिंदु कहाँ पड़ा था? तो અહીં તમારો જવાબ આવશે કે नदी वाली कोठरी में। नदी वाली कोठरी में એટલે કે ए। पांचवा प्रश्न, कुंदन के काका के घर से क्या चुराया था? कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? जवाब आवશે गेहूं। छठो प्रश्न, अंत में मालती ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया? तो आवશે स्नेहपूर्ण અને આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે પ્રશ્ન। 18મો પ્રશ્न, પહેલો मतलब કે गद्य नंबर 18 તેમાં પહેલો પ્રશ્न, हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले, यह वाक्य कौन कहता है? तो અહીં જે છે જ્યાં તમારે આવશે ગોપી એટલે કે ગોપી કહે છે। બીજો પ્રશ્ન, अविनाश ने गोपी को किसकी कविता समझाने का वाद किया था? અહીં જે છે જવાબ આવશે प्रसाद की। तीजा प्रश्न, रमेश के अनुसार अविनाश को साथ देखकर किसको हर्ज होगा? અહીં जवाब આવશે गोपी के बड़े भाई को, ए। चौथा प्रश्न, शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र लिखने का काम किसे सौंपा गया था? અહીં जवाब આવશે તમારે अविनाश को। पांचवा प्रश्न, गांव में राशन वितरण का काम कौन करता है? અહીં જે છે જવાબ આવશે सहकारी मंडली। ત્યાર પછી गद्य नंबर 20 તેના વિશે વાત કરીએ। પહેલો પ્રશ્ન, एल्बम के 500 रुपये किसे मिले? जवाब આવશે पंडित शादीराम को। ત્યાર પછી બીજો विकल्प, सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? जवाब આવશે एल्बम बनाया। तीजा प्रश्न, यह किसी आदमी की करवट न थी तो किसकी करवट थी? तो અહીં તમારો જવાબ આવશે ભાગ્ય। આ પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે। ચોથો પ્રશ્ન, कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र क्यों लिखा? અહીં તમારે જે છે જવાબ શું આવશે? તો કે જવાબ અહીં તમારે આવશે एल्बम भेजने के लिए એટલે કે सी। पांचवा प्रश्न, पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? અહીં જવાબ આવશે તમારે बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे એટલે કે बी। पंडित शादीराम के घर में पड़ी पत्रिकाएं कैसी थी? અહીં તમારો જવાબ આવશે सचित्र એટલે કે सी। सातवां प्रश्न, पंडित शादीराम की अलमारी में क्या था? અહીં તમારો जवाब આવશે बंगला हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिकाएं એટલે કે डी। गद्य नंबर 20 ની વાત કરીએ। पहलो प्रश्न, इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया? અહીં તમારે જે છે જવાબ અહીં આવશે डंकन। धन जीवन का क्या है? तो जवाब આવશે नियंत्रक परिबल। तीजो प्रश्न, पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? અહીં તમારે જે છે જવાબ આવશે सोना था। तो सोना એટલે કે बी। ત્યાર પછી गरीब का गहना क्या है? અહીં તમારે જે છે
जवाब आवशे स्वाभिमान। पांचवा प्रश्न, तृष्णाएं बढ़ने पर क्या समाप्त हो जाती है? અહીં जवाब आवशे मनुष्य की नेकी। छठो प्रश्न, धावा बोलकर माल असबाब लूट लेना किसका उद्देश्य है? जवाब आवशे डाकू का। तो અહીં જે છે આપણા વિકલ્પ પૂર્ણ થાય છે। હવે रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए તેની વાત કરીએ, મતલબ કે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે જેમાં પ્રશ્નક્રમ 4, 5 અને 6 રહેશે, જેના ગુણ 3 રહેશે। અને સૌપ્રથમ વાત કરીશું ગદ્ય નંબર 2, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक खाली जगह होता ही है। जवाब आवशे विद्वेष। बीजो प्रश्न, बुढ़ापा बहुधा खाली जगह का पुनरागमन है। जवाब आवशे बचपन। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तीजो प्रश्न, बूढ़े काकी के संताप और खाली जगह पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो जवाब आवशे आर्तनाद। चौथो प्रश्न, बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी खाली जगह के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। અહીં જે છે તમારો જવાબ આવશે નિર્લજ્જતા, એટલે કે નિર્લજ્જતા। પહેલો ઓપ્શન જવાબ તમારામાં આવશે। પાંચમો પ્રશ્ન, પ્રેમચંદ का मूल नाम खाली जगह, અહીં શું હતું મતલબ તેનું મૂળ નામ? તો જવાબ આવશે ધનપત રાય। છઠ્ઠો પ્રશ્ન, बुढ़ापा खाली जगह रोग का अंतिम समय है। जवाब आवशे तृष्णा। बात करिए गद्य नंबर 4 ની पहला प्रश्न, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य खाली जगह ने कहा। तो सरकारी कर्मचारी। बीजो प्रश्न, व्यक्तिगत जीवन संगठित होने से खाली जगह अपने आप संगठित हो जाएगा। तो मनुष्य समाज। त्यार पछी, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ खाली जगह से काम करना चाहिए। जवाब आवशे ईमानदारी। चौथो प्रश्न, खाली जगह करने वाला सच्चा देशभक्त है। जवाब आवशे અહીં જે છે જવાબ આવશે કર્તવ્ય પાલન, પહેલો ऑप्शन। पांचवा प्रश्न, एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के लेखक का नाम खाली जगह है। तेना लेखक कौन था? तो कि श्री प्रकाश था। छठो प्रश्न, अपने काम में खाली जगह लेना चाहिए। तो गर्व। गद्य नंबर 6 ની વાત કરીએ। પહેલો પ્રશ્न, कालिदास खाली जगह भाषा के एक महाकवि थे। तो અહીં જે છે કઈ ભાષા? તો કે સંસ્કૃત ભાષા। बीजो प्रश्न, कालिदास का प्राणी प्रेम इस नाटक में खाली जगह के प्रति प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है। અહીં જવાબ આવશે વન્ય પ્રાણીઓ। ત્રીજો પ્રશ્ન, एक बाળ प्राण ले सकता है तो खाली जगह का कोमल स्पर्श प्राण दे सकता है। जवाब आवશે उंगलियों। ત્યાર પછી चौथो प्रश्न, कालिदास को दंतुल के खाली जगह की चिंता नहीं थी। जवाब आवશે शस्त्र। पांचवा प्रश्न, दंतुल ने कालिदास पर खाली जगह लांछन लगाया। तो चोरी का। छठो प्रश्न, कालिदास हरिण को खाली जगह ले गए। जवाब आवશે मल्लिका के घर। गद्य नंबर 8 ની વાત કરીએ। पहलो प्रश्न, टेल्को कंपनी का विज्ञापन खाली जगह पद के लिए था। तो जवाब आवશે અહીં તમારે इंजीनियर। बीजो प्रश्न, सुधा कुलकर्णी के पति का नाम खाली जगह है। तो आवશે नारायण मूर्ति। ત્યાર પછી ત્રીજો प्रश्न, भारत में लोहा इस्पात का उद्योग विकसित करने वाला सज्जन का नाम खाली जगह है। तो विकल्प પણ હમણાં આવ્યું હતું श्री JRT टाटा। चौथा प्रश्न, सुधा कुलकर्णी को आवेदन के लिए खाली जगह बुलाया गया। तो जवाब आवશે અહીં તમારે पूना। पांचवा प्रश्न, खाली जगह कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। तो टेल्को कंपनी। छठा प्रश्न, लेखिका सुधामूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार खाली जगह ने दिया। तो અહીં તમારો જવાબ આવશે FM રેડિયો, એટલે કે પહેલો ઓપ્શન જવાબમાં આવશે। વાત કરીએ હવે ગદ્ય નંબર 10 ની। પહેલો પ્રશ્ન, આંદ્રી ગીત ખાલી જગ્યા લેખક थे। तो जवाब आवશે અહીં તમારે फ्रांसीसी। बीजो प्रश्न, जीते रहना सबसे खाली जगह काम है। तो बड़ा। तीजो प्रश्न, मर जाना लेखक के हिसाब से खाली जगह काम है। जवाब आवશે छोटा। चौथा प्रश्न, प्राचीन खाली जगह ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था। तो चीनियों। बात करिए गद्य नंबर 12 ની। पहलो प्रश्न,
प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट खाली जगह बनाना था। जवाब आवश्य मानव प्रक्षेपण यंत्र। बीजो प्रश्न परमाणु में खाली जगह नहीं होता। जवाब आवश्य अणु। तीजो प्रश्न मानव प्रक्षेपण यंत्र के संपादन की प्रक्रिया अत्यंत खाली जगह होती है, तो अहीं तमारो जवाब आवश्य जटिल। चौथा प्रश्न माधवन के साथ खाली जगह की संस्तुति थी, अहीं तमारो जवाब आवश्य सदानंद। पांचवा प्रश्न ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती पर उसका खाली जगह परिवर्तन किया जा सकता है, जवाब आवश्य स्वरूप। छठो प्रश्न प्रोफेसर रामिस का चेहरा एक विशेष प्रकार की खाली जगह से दमक रहा था, जवाब आवश्य तमारे श्रद्धा। बात करिए હવે ગદ્ય નંબર 14ની, તેમાં પહેલો પ્રશ્न रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम खाली जगह था, जवाब आवश्य श्री सोमदेव। बीजो प्रश्न बिस्मिल माँ के चरणों को प्रणाम करके तथा खाली जगह का स्मरण करके शरीर त्याग करना चाहते थे, जवाब आवश्य परमात्मा। तीजो प्रश्न बिस्मिल की माँ ने लिखना पढ़ना अपनी खाली जगह से सीखा, तो जवाब आवश्य सखी सहेलियों। चौथा प्रश्न बिस्मिल खाली जगह वस्तु का स्वीकार नहीं करते थे, तो जवाब आवश्य धर्म विरुद्ध। पांचवा प्रश्न पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने खाली जगह बांटी थी, जवाब आवश्य मिठाई। छठो प्रश्न बिस्मिल की माँ खाली जगह पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी, जवाब आवश्य देवनागरी। बात करिए गद्य नंबर 16 पहलो प्रश्न व्यक्ति को वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो वह खाली जगह से प्राप्त करने में नहीं हिचकिचाता, जवाब आवश्य चोरी। बीजो प्रश्न नंदन के अनुसार खाली जगह का अंत नहीं था, जवाब आवश्य बहस। तीजो प्रश्न कुंदन ने काका के घर से खाली जगह चुराया था, तो आवश्य अनाज। चौथा प्रश्न देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से खाली जगह उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं, जवाब आवश्य ट्रंक। पांचवा प्रश्न मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में खाली जगह आ गई, जवाब आवश्य तेजी। छठो प्रश्न चोरी करना अच्छा नहीं है परंतु आज की स्थिति बड़ी खाली जगह हो गई है, जवाब आवश्य लाचार। बात करिए गद्य नंबर 18 पहलो प्रश्न सदस्यों से जवाब न मिलने पर रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश खाली जगह पर बैठे थे, जवाब आवश्य हड़ताल। પછી બીજો પ્રશ્न अविनाश का भाषण पंचायत द्वारा किए गए खाली जगह तथा अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में था, जवाब आवश्य घोटालों। तीजो प्रश्न अविनाश ने गोपी को खाली जगह की कविता समझाने का वादा किया था, जवाब आवश्य प्रसाद जी। चौथा प्रश्न गांव में राशन वितरण का काम खाली जगह करता था, जवाब आवश्य सहकारी मंडली। पांचवा प्रश्न शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र लिखने का काम खाली जगह को सौंपा गया था, तो अविनाश। छठो प्रश्न अविनाश के साथी खाली जगह पर पत्थरबाजी कर रहे थे, तो अहीं तमारो जवाब आवश्य पंचायत घर। बात करिए हवे गद्य नंबर 20 पहलो प्रश्न सादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिरहाने से खाली जगह मिला, जवाब आवश्य एल्बम। त्या पछी बीजो प्रश्न सादीराम के दिल में खाली जगह न थी, जवाब आवश्य शांति। तीजो प्रश्न पंडित सादीराम छाटे गए चित्रों को इस तरह देखते हैं मानो उनमें से हर एक खाली जगह का नोट हो, तो अहीं तमारो जवाब आवश्य 50, अहीं जवाब आवश्य 10। चौथा प्रश्न पत्रिकाओं के चित्र देखकर बच्चों के खाली जगह थम जाते थे, अहीं जवाब आवश्य आंसू। पांचवा प्रश्न यह किसी आदमी की करवट न थी, यह खाली जगह की करवट थी, जवाब आवश्य भाग्य। 22वां प्रश्न मतलब के गद्य नंबर 22 पहलो प्रश्न खाली जगह जीवन का नियंत्रक परिबल है, तो धन। बीजो प्रश्न खाली जगह वनस्पति विज्ञान के महान पंडित बन गए, तो डंकन। तीजो प्रश्न पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले नर कंकाल की मुट्ठी में खाली जगह था, सोना। चौथा प्रश्न खाली जगह जॉन डंकन के पिताजी थे, जवाब आवश्य तमारे बुनकर। पांचवा प्रश्न जॉन डंकन खाली जगह के निवासी थे, तो आवश्य स्कॉटलैंड। छठो प्रश्न धन सुख का खाली जगह है, तो जवाब आवश्य जादूगर। ત્યાર પછી હવે વાત કરીએ આપણે અહીં ખાલી જગ્યા તમારી સમાપ્ત થાય છે। વાત કરીએ હવે તમારો જે ત્રીજો પ્રકાર સહી વાક્યાંશ ચૂનકર ઉત્તર લીખીએ તેના વિશે વાત કરીશું।
જેમાં તમારે પ્રશ્ન ક્રમ 7, 8 અને 9 રહેશે, જેના પ્રશ્ન અંક તમારે 3 રહેશે। જોઈએ આપણે गद्य नंबर 2 पहला प्रश्न, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। अहीं तमारे जे छे वाक्य पूરું કરવાનું। जवाब आवशे અહીં, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ जाती है। बीजो प्रश्न, थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और जवाब શું આવશે અહીં, તો કે उत्तेजित कर दिया था। त्या पछी पहलो प्रश्न, मतलब के गद्य नंबर 4 तेना माटे पहलो प्रश्न, ईसाई पादरी के अनुसार, तो ईसाई पादरी के अनुसार लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। बीजो प्रश्न, वृद्ध स्त्री के अनुसार, अहीं जवाब आवशे, तमारे जवाब आवशे अहीं, भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। बात करिए गद्य नंबर 6 नी पहलो प्रश्न, यदि धनतोल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो जवाब आवशे हरिणों का शिकार न करता। बीजा प्रश्न, धनतोल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ, तो जवाब तुम्हारे आवशे कि अशिष्टता का व्यवहार किया। तीजो प्रश्न, अंबिका रुष्ट थी क्योंकि, जवाब तुम्हारा आवशे पुत्री मल्लिका वर्षा में कालिदास के साथ थी। बात करिए हवे गद्य नंबर 8 नी पहलो प्रश्न, महिलाओं की सफलता पर सुधामूर्ति कह उठी। जवाब अहीं तमारे आवशे, उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। बीजो प्रश्न, कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर की योजना। अहीं तमारे जे छे जवाब आवशे इन्फोसिस फाउंडेशन ने बनाई। तीजो प्रश्न, साक्षात्कार के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी से सुधा से कहा। जवाब अहीं तमारे जे छे आवशे, आप जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। गद्य नंबर 10 की बात करिए, पहला प्रश्न, लेखक सबसे बड़ा काम, जवाब से जीवन जीने को मानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते आ। बीजो प्रश्न, हर आदमी खाई जगह, जवाब से पूर्ण संग्रह का अंश है। तो जवाब तुम्हारे आवशे। तो पछी तीजो प्रश्न, आंद्री गीध, तो अहीं तमारे जवाब आवशे फ्रांसीसी लेखक है। बात करिए हवे गद्य नंबर 12 पहलो प्रश्न, प्रोफेसर रामिस कहते हैं कि अभी तो उन्हें अपना काम शुरू करना है और जवाब अहीं तमारे आवशे, देश के लाखों लोगों को कुपोषण से बचाना है। बीजो प्रश्न, ऊर्जा की विशेषता यह है कि, अहीं तमारे जे जवाब आवशे, ऊर्जा की विशेषता यह है कि हमें, मतलब के इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। तीजा प्रश्न, एक नई शुरुआत के 2 वैज्ञानिकों के नाम। कौन था 2 वैज्ञानिक? तो जवाब तुम्हारा आवशे प्रोफेसर रामिस और प्रोफेसर माधवन। चौथा प्रश्न, प्रोफेसर रामिस ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट का प्रयोग छोड़ देने का निर्णय किया क्योंकि, अहीं तमारे जे छे जवाब आवशे, क्योंकि यह काम मानव प्रक्षेपण यंत्र प्रोजेक्ट के प्रयोग से कहीं अधिक जरूरी है। गद्य नंबर 24 की बात करिए, पहला प्रश्न, रामप्रसाद बिस्मिल का इस बात का दुख था, रामप्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें, तो जवाब आवशे अहीं, माँ की सेवा करने का अवसर नहीं मिला। बीजो प्रश्न, बिस्मिल को माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि, तो जवाब तुम्हारे आवशे, उनके द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। तीजा प्रश्न, रामप्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि, जवाब आवशे, उनकी दृष्टि से वह धर्म विरुद्ध था। बात करिए गद्य नंबर 16 पहला प्रश्न, नंदन ने मालती को शांत कर कहा। मतलब कि क्या कहा, शू कीधुं हतुं? जवाब अहीं तमारे आवशे, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। बीजो प्रश्न, मालती ने बिंदु से पूछा। जवाब आवशे, मुंह में जबान नहीं है। तीजो प्रश्न, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को, जवाब आवशे, थोड़े से काजू और किशमिशें दिखे। चौथा प्रश्न, मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में, जवाब आवशे, तेजी आ गई। पांचवा प्रश्न, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह वाक्य किसने कहा? जवाब तुम्हारे अहीं आवशे, नंदन।
बात करिए गद्य नंबर 18 पहला प्रश्न, जो लंबा भाषण कर सकता है? जवाब आपसे उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। बीजा प्रश्न, मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तुओं से उतना ही प्यार और लगाव है जितना, तो जवाब तुम्हारा आपसे अपनी संतान से। तीजो प्रश्न, रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश उन अनशन पर बैठे थे क्योंकि, तो जवाब तुम्हारा आपसे प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सदस्यों ने जवाब नहीं दिया था। बात करें गद्य नंबर 20 पहलो प्रश्न, सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि, तो जवाब तुम्हारा આવશે મારવાડી શેઠને આલ્બમ ખરીદ लिया था। અહીં તમારે માર્ચ 2020 પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે। બીજો પ્રશ્ન, આલ્બમ भेजने के लिए पत्र, तो जवाब तुम्हारा આવશે मारवाड़ी सेठ ने लिखा था। ત્રીજો प्रश्न, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं, जवाब આવશે बेचते नहीं थे। बात करिए गद्य नंबर 22 पहलो प्रश्न, डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाले एक, जवाब आवશે गरीब बुनकर का पुत्र था। बीजो प्रश्न, त्याग और भोग, जवाब आवશે एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। तीजो प्रश्न, केवल धन से आदमी को, जवाब आवશે सम्मान मिलना मुश्किल होता है। चौथा प्रश्न, जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, तो અહીં તમારો जवाब આવશે तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। पांचवा प्रश्न, गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए, जवाब आवશે गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा है। હવે એક વાક્યવાળા પ્રશ્ન, એક વાક્ય में उत्तर लिखिए। પ્રશ્નક્રમ તમારે 1 અને 2 રહેશે, જેના ગુણ તમારે 2 રહેશે। અહીં તમારે પ્રશ્નક્રમ તમારે અહીં રહેશે 10 અને 11, જેના 2 ગુણ રહેશે। बात करिए गद्य नंबर 2 पहलो प्रश्न, काकी पर क्रोध आने पर बुद्धिराम ने क्या किया? तो काकी मतलब कि जवाब तुम्हारा आवશે बुद्धिराम को काकी पर क्रोध आने पर वह उसके दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए कोठरी में पटक आया था। बीजो प्रश्न, लेखक ने बुढ़ापे को क्या कहा है? तो तृष्णा रोग का अंतिम समय। तीजो प्रश्न, बुद्धिराम के बेटे के तिलक में क्या क्या बन रहा था? जवाब आवશે તમારે पूड़िया, कचौड़िया और मसालेदार सब्जी। चौथा प्रश्न, बूढ़ी काकी कढ़ाई के पास कैसे पहुंची? जवाब आवશે रेंगते रेंगते। पांचवा प्रश्न, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? जवाब आवશે अपशकुन के डर से। छठा प्रश्न, किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? जवाब तुम्हारे आवશે पूड़िया खिलाने की खुशी में। सातवां प्रश्न, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? जवाब आवશે स्वादेंद्रिय। आठवां प्रश्न, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? जवाब आवશે फाड़ फाड़ कर, गला फाड़ फाड़ कर। गद्य नंबर 4 की बात करिए। पहलो प्रश्न, लेखक श्री प्रकाश के अनुसार सच्चा देशभक्त कौन है? तो जवाब आवશે जो अपना कर्तव्य ठीक से करता है। बीजो प्रश्न, हम किसकी जय जयकार करते हैं? जवाब आवશે नेताओं की मूर्ति बनाकर उनकी जय जयकार करते हैं। तीजो प्रश्न, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? जवाब आवશે कुटुंब व्यवस्था उदारता के गुण के अभाव में नष्ट हो गई क्योंकि जीवन के अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। चौथा प्रश्न, लेखक को किस बात की खपत थी? जवाब आवશે अवनति का कारण जानने की, देश की अवनति का कारण जानने की। पांचवा प्रश्न, लेखक के पहले मित्र कौन थे? तो लेखक के पहले मित्र ईसाई पादरी थे। गद्य नंबर 6 की बात करिए। पहला प्रश्न, दंतुल कालिदास तक कैसे पहुंचा? तो रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके। कालिदास हरिण को कहाँ ले गए? जवाब आवશે मल्लिका के घर। तीजा प्रश्न, हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? दंतुल। चौथा प्रश्न, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? तो मल्लिका के मुख से कालिदास का नाम सुनकर दंतुल पहचान गए कि वह कवि कालिदास।
पांचवा प्रश्न, कालिदास कौन थे? तो संस्कृत साहित्य के महाकवि। गद्य नंबर 8, पहलो प्रश्न, सुधा मूर्ति ने टेल्को कंपनी से त्याग पत्र क्यों दे दिया? जवाब आवश्य तुम्हारे क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। बीजो प्रश्न, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? जवाब तुम्हारा आवश्य वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी से सुधा से कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती, इसलिए उस जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। तीजा प्रश्न, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? तो जवाब आवश्य यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है, वह इस भेदभाव को विरोध करेगी। चौथा प्रश्न, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? जवाब आवश्य इंजीनियर। पांचवा प्रश्न, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? जवाब आवश्य न्यायमूर्ति। छठा प्रश्न, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? जवाब आवश्य एक कंप्यूटर की योजना बनाई। सातवां प्रश्न, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? जवाब आवश्य मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। गद्य नंबर 10 की बात करिए। गद्य नंबर 10, पहला प्रश्न, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? जवाब आवश्य जो ज्यादा खुश रहता है। बीजो प्रश्न, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा था? तो चीनियों ने। तीजो प्रश्न, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? तो जवाब तुम्हारा आवश्य जवाब आवश्य हंसी खुशी में जीकर जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाई जा सकती है। चौथा प्रश्न, फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद ने क्या लिखा है? जवाब आवश्य खुश रहना केवल जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी। त्या पछी गद्य नंबर 22 है, जेना प्रश्न हवे तमे स्क्रीन पर जोई शको छो। गद्य नंबर 24, त्यार पछी गद्य नंबर 16, गद्य नंबर 18, त्यार पछी गद्य नंबर 20, त्यार पछी 22, गद्य नंबर 22। तो हवे આપણે વિભાગ બી જોવાનું છે। અત્યાર સુધી વિભાગ એ ના બધા જ હેતુલક્ષી પ્રશ્નો આપણે શાંતિથી સમજ્યા છીએ। તેને આશા છે મને કે તમે તેના જવાબ જરૂરથી લખ્યા હશે। હવે આપણે વિભાગ બી તરફ જઈએ। વિભાગ બી ના તમારે જે છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવા હેતુલક્ષી પ્રશ્નો માટેનો આપણે જોઈએ। સૌપ્રથમ કે વિભાગ બી પદ્ય વિભાગ, સૌપ્રથમ વિકલ્પ પોથી કે જે પ્રશ્નક્રમ 1 અને 2 જેમાં તમારે प्रश्नक्रम तमारा अहीं रहेशे 12 અને 13, जेना 12, 13 અને 14 जेना गुण तमारे 3 रहेशे। जोईए आपणे तेमां सौप्रथम पद्य नंबर 1। पद्य नंबर 1 तेमां पहलो प्रश्न, आत्मा परमात्मा की अद्वैतता की बात कौन से काव्य में की गई है? जवाब अहीं तमारा आवशे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। त्यार पछी बीजो प्रश्न, रैदास के पदों में ईश्वर के प्रति कैसे भक्ति भाव के दर्शन होते हैं? तो अहीं तमारे जवाब अहीं तमारे आवशे एकनिष्ठ। तो आवशे एकनिष्ठ। तीजो प्रश्न, रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को क्या बताते हैं? तो अहीं जे छे तमारे जवाब आवशे दास। चौथो प्रश्न, भक्त धागा है तो प्रभु क्या है? तो भक्त धागा है, तो जवाब अहीं तमारा आवशे मोती। पांचवा प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य के कवि कौन है? जवाब अहीं तमारा आवशे रैदास।
प्रकरण मतलब के पद्य नंबर 3 ની વાત કરીએ। पहलो प्रश्न, कल धोत के धाम का अर्थ होता है। અહીં જે છે जवाब તમારે આવશે कल धोत के नाम का अर्थ होता है, तो जवाब અહીં આવશે सोने का राजमहल। શું अर्थ થાય सोने का राजमहल? जवाब આવશે सी। बीजो प्रश्न, यमुना किनारे कंदब की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? जवाब અહીં આવશે તમારે पक्षी रूप में। तीजो प्रश्न, कालिंदी कौन सी नदी का नाम है? અહીં તમારો જવાબ આવશે यमुना। त्या પછી चौथो प्रश्न, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? जवाब આવશે गोवर्धन। पांचवा प्रश्न, यमुना के किनारे कौन सा वृक्ष है? तो जवाब આવશે कंदब। छठो प्रश्न, गोपी श्री कृष्ण से कैसा प्रेम करती है? जवाब આવશે निश्चल। गद्य नंबर मतलब के पद्य नंबर 5 पहलो प्रश्न, किनकी कृपा में मीरा ने राम रतन धन पाया है? जवाब આવશે તમારે ભગવાન की। અહીં તમારે જે છે सी नहीं, जवाब તમારે આવશે डी, सदगुरु की कृपा से। बीजो प्रश्न, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उनसे क्या कहा? तो जवाब આવશે कुलनाशिनी। जो तीजो प्रश्न, मीरा ने किसे जन्म जन्म की पूंजी माना है? तो जवाब અહીં તમારે આવશે कृष्ण भक्ति। चौथो प्रश्न, मीरा ने किनके हाथ અહીં જે છે ત્રીજો પ્રશ્ન તમારે मीरा ने किसे जन्म जन्म की पूंजी मानी है? जवाब અહીં આવશે राम रतन धन। चौथो प्रश्न, मीरा ने किनके साथ बैठकर लोक लाज खोई? जवाब આવશે તમારે साधु संग। पद्य नंबर 7 पहलो प्रश्न, भारत का भाल खाली जगह है? तो हिमालय। बीजो प्रश्न, गंगा यमुना नदिया किससे ग्रंथित है? तो અહીં તમારે જે છે जवाब અહીં આવશે ज्योति। तीजो प्रश्न, गीता का गान किसने किया था? तो जवाब આવશે श्री कृष्ण। चौथो प्रश्न, तापस सुकुमारी क्या बनी? तो जवाब અહીં તમારે આવશે शीला। पांचवा प्रश्न, भारत क्या कहलाता है? तो અહીં તમારે जवाब આવશે विश्व शांति दूत। छठो प्रश्न, श्री कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? भगवत गीता। सातवां प्रश्न, जन्मभूमि काव्य के रचयिता कौन है? तो तेना रचयिता હતા તમારે સુમિત્રાનંદન पंत, એટલે કે જવાબ આવશે सी। पद्य नंबर 20 ની વાત કરીએ। पहला प्रश्न, सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था? तो जवाब આવશે તમારે झाड़ी में। बीजो प्रश्न, दिनकर किसका उपनाम है? तो जवाब અહીં તમારે આવશે रामधारी सिंह दिनकर। तीजो प्रश्न, जान बचाकर रोटी कमाने की सीख कहाँ से मिलती है? तो जवाब અહીં આવશે शास्त्र। चौथा प्रश्न, लोमड़ी ने क्या कहकर कुत्ते को संबोधित किया? तो जवाब આવશે मामा। पांचवा प्रश्न, कुत्ते की खाली जगह सुनकर खरहा कुत्ते की खाली जगह सुनकर खरहा सोते से जाग गया? तो जवाब અહીં આવશે सांस। पद्य नंबर 11 पहलो प्रश्न, नवयुग के नयनों में क्या भरा है? जवाब આવશે અહીં જે છે जवाब આવશે अग्नि के जलते हुए पुंज। बीजो प्रश्न, करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी? तो यह भारतवर्ष हमारा है। तीजो प्रश्न, भारतीय जनता का प्रबल उत्साह देखकर कौन कांप उठा? तो जवाब આવશે प्रतिपक्षी। चौथो प्रश्न, कवि बालकृष्ण शर्मा भारत देश को अपना क्या मानते हैं? तो जवाब અહીં આવશે अभिमान। पांचवा प्रश्न, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? तो जवाब અહીં આવશે आदि अनादि से। पद्य नंबर 13 पहला प्रश्न, साधु को क्या खुलने का भय नहीं लगना चाहिए? અહીં તમારે જે છે जवाब અહીં આવશે पोल। बीजो प्रश्न, विद्वान साधु से तर्क क्यों नहीं करेंगे? तो के અહીં जवाब તમારે આવશે साधु का मौन व्रत देखकर। तीजो प्रश्न, साधु की देह कैसी चमकनी चाहिए? साधु की देह कैसी चमकनी चाहिए? जवाब અહીં આવશે दीप। चौथा प्रश्न, साधु को बाहर से कैसा बने रहना चाहिए? तो जवाब આવશે नम्र। पांचवा प्रश्न, साधु के हाथ में क्या होनी चाहिए? तो અહીં તમારે जवाब આવશે गोमुखी।
पद्य नंबर 15 पहलो प्रश्न, हम नवयुग के क्या है? तो अग्रदूत। बीजो प्रश्न, कवि ज्योति लेकर कौन से पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं? तो અહીં તમારો જવાબ આવશે उन्नति पथ। ત્રીજો प्रश्न, कवि रांगेय राघवजी के मतानुसार कौन वंदनीय है? અહીં તમારો જવાબ આવશે किसान मजदूर। चौथा प्रश्न, कवि कैसे आगे बढ़ने की इच्छा रखते थे? तो અહીં તમારો जवाब આવશે अविरत। पांचवा प्रश्न, कवि श्री रांगेय राघव जी के मत से प्रत्येक मनुष्य को क्या मिलना चाहिए? जवाब आवશે संतोष। पद्य नंबर 17 पहला प्रश्न, कश्मीर का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो અહીં जवाब આવશે अमरनाथ। बीजा प्रश्न, कश्मीर में किसकी प्रेम कथाएं गाई जाती है? અહીં તમારે જવાબ આવશે बिलहण, मतलब जवाब આવશે અહીં कलहण। तीजा प्रश्न, बस्ती किससे बात करती है? तो जवाब आवશે वीरानों से। चौथा प्रश्न, शहनाई कौन बजाते हैं? तो અહીં તમારો जवाब આવશે भोंरे। पांचवा प्रश्न, शालीमार क्या है? तो जवाब आवશે श्रीनगर का प्रसिद्ध बाग है। गद्य नंबर 19 पहला प्रश्न, शिकारी का बाण कैसा था? तो जवाब आवશે તમારે तीक्ष्ण। ત્યાં અહીં તમારે જે છે જવાબ આવશે वेशभूषा। बीजो प्रश्न, तोता पेड़ को क्या मानता है? तो जवाब તમારે અહીં આવશે सच्चा साथी। तीजो प्रश्न, देवताओं के साथ कौन वन में गुजर रहा था? तो जवाब અહીં આવશે देवपति। चौथो प्रश्न, तोते का सूखे तरु पर रहना इंद्र के अनुसार क्या था? तो जवाब અહીં આવશે मूर्खता। पद्य नंबर 21 पहला प्रश्न, राम भजन बिना कौन नहीं सोता है? तो जवाब आवશે અહીં तोता। बीजा प्रश्न, मन का भारी तन का छोटा कौन है? मन का भारी तन का छोटा कौन है? तो जवाब અહીં આવશે लोटा। तीजा प्रश्न, लोटा मन की क्या बुझाता है? तो जवाब અહીં આવશે प्यास। ત્યાર અહીં તમારે જવાબ આવશે તપન। चौथा प्रश्न, अमीर खुसरो के अनुसार गुणवंत कौन है? तो जवाब आवશે तोता। गद्य नंबर 23 पहला प्रश्न, तोता फल कैसे खाता है? तो जवाब आवશે અહીં कुतरकर। बीजो प्रश्न, भूख लगने पर शिकार पर कौन झपटता है? तो जवाब आवશે बाज। અહીં તમારા પદ્ય એટલે કે વિભાગ બી ના તમારા અહીં જે છે વિકલ્પ પૂર્ણ થાય છે। હવે રિક્ત સ્થાનો की પૂર્તિ કીજીએ। તેમાં પ્રશ્નક્રમ જેનો 18, 19 અને 20 છે જેના ગુણ 3 છે તેના માટે આપણે મોસ્ટ આઈએમપી ખાલી જગ્યા એટલે કે રિક્ત સ્થાન જોવાના છીએ। જોઈએ પદ્ય નંબર 1। સૌપ્રથમ पहली खाली जगह, रविदास को खाली जगह नाम से जाना जाता है। जवाब आवશે અહીં તમારે रविदास। बीजा प्रश्न, प्रभु चंदन है तो भक्त खाली जगह है? तो जवाब आवશે અહીં पानी। तीजो प्रश्न, प्रभु बादल है तो भक्त खाली जगह है? तो जवाब आवશે અહીં मोर। चौथा प्रश्न, खाली जगह मिलने पर सोने का महत्व बढ़ जाता है? तो जवाब आवશે सुहागा। पांचवा प्रश्न, भक्त धागा है तो प्रभु खाली जगह है? तो અહીં તમારે जवाब આવશે मोती। छठवा प्रश्न, रविदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को खाली जगह मानते हैं? तो जवाब આવશે दास। आ प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टન્ટ રહેશે। मार्च 2022 में पूछाई गयो છે। आ वखते पण पूछाવાની खूब शक्यता છે। ત્યાર પછી પદ્ય નંબર 3 ની વાત કરીએ। અહીં જે છે પદ્ય નંબર 3 તમારે જાતે અહીં જે છે હવેના હેતુલક્ષી પ્રશ્ન જાતે રીડ કરવાનો રહેશે। તેને આપણે રીડ કરીશું નહીં।
નથી બન્યો. મિત્રો અહીંયા આપણે વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરીને મિત્રો સાથે છે જરૂરથી કરજો. જો ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હજુ આપણી ચેનલ પર વ્યાકરણને લગતો હજી એક વિડીયો આવવાનો છે, જેમાં મોસ્ટ IMP વ્યાકરણને આપણે કવર કરીશું. તેથી તમે વ્યાકરણમાં હેતુલક્ષી પ્રશ્નોમાં પણ તમે સારા ગુણ મેળવી શકો. અને જે મોટા પ્રશ્નો હોય છે તેને તમારે જાતે તૈયાર કરવાના રહેશે. હિન્દીનું પેપર પૂરું થયા બાદ તેનું સોલ્યુશન પણ આપણે આ ચેનલ પર આવવાનું છે, તેથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેવી. આજના વિડીયો માટે આટલું જ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.